Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about the concept of heredity and discussed about Mendel's contribution. According to Mendel, if 50% of DNA is maternal and 50% of the DNA is paternal in an offspring, then the offspring should be exhibiting both characters. Instead, the offsprings will be exhibiting any one character. In order to research on this, he had experimented using a pea plant with a single contrasting character. For example, he took the tall pea plants as a male and the short pea plants as a female. He allows the pollination between them and therefore the fertilization, and after fertilization and cultivating and growing, the next progeny of the plants that were obtained were all tall plants. When these tall plants were self-crossed, that is, self-crossed means crossing with a very similar variety having same genetic constitution. When they were crossed, self-crossed, it was found that, or you can say self-pollinated, it was found that all the next F2 progenies obtained, in which 3 of them were tall and 1 was short. 1 was short, that indicates that might be a recessive trait, whereas the capital T over here represents a dominant trait and the small t represents the recessive trait. डोमिनेंट मतलब जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करती है उसे डोमिनेंट कहा जाता है, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते या तो एक्सप्रेस करते हैं पर ओनली व्हेन नो डोमिनेंट ट्रेट इज प्रेजेंट, तो उसे हम कहते हैं दैट इट इज गोइंग टू बी रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में पढ़ा। Then after Mendel thought to consider 2 characteristics at a time. So he considered 2 characteristics. Mendel then experimented with 2 characteristics in a pea plant at a time. So instead of just considering one character, that is tall and dwarf, he here considered, that is, initial experiment was known as monohybrid cross, जिसमें उसने एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग ओवर किया था और फिर उसमें क्या ऑब्जर्व होता है वो देखा था। पर अब मेंडल ने क्या किया है, ही कंसिडर्ड 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए थे, दे वर शेप ऑफ द सीड व्हिच वाज ऑफ 2 टाइप्स। शेप था राउंड और wrinkle. 2 shapes that were considered were round and wrinkle. And the another thing he considered was the color of the seed. Color of the seed, in which there was yellow and green. So he considered 2 pairs of contrasting characters, round and wrinkled, yellow and green. So he considered shape of the seed as well as color of the seed. Now what did he select as parents in this generation? So for this experiment, the round characteristic that was observed was a dominant character. Okay, so he considered the dominant character as well as he considered a recessive character. तो दोनों ही में डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है? तो जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं तो राउंड एंड येलो were the dominant ones, whereas the wrinkle and the green were the recessive ones. So he selected
and capital Y, capital Y. Whereas green and wrinkled, these were small r and small y. So these were selected as the parents for his experiment. Now how this cross will be performed? उसमें तो कितना easy था कि हमने दो पेरेंट्स ले लिए, उनमें से एक गैमेट ले लिए, मतलब हमें मिल गया F1 प्रोजेनी, और F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस करते हैं तो चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो है F2 प्रोजेनी। पर यहाँ पे क्या चार प्रोजेनीज मिलेंगी F2 में? नहीं। Here you are going to get 16 F2 progenies. Why? Because we have increased the number of characteristics in this experiment. So here, first of all, the parents selected are capital R, capital R, capital Y, capital Y. मतलब ये plant कैसा होगा? Round seeds, yellow in color. Another parent that is small r, small y. तो ये कैसे होने वाले हैं? These are going to be green and wrinkled. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ round and yellow, and here I will write green and wrinkled. Okay? तो ये हो गए पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंट में से बनाने हैं गैमेट। तो जब भी पेरेंट में से गैमेट बनता है तो 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज पास्ड ऑन। क्या पास होता है? 50%। अगर पेरेंटल में 2R और 2Y है तो इसमें से नेक्स्ट जनरेशन में इसका 50% जेनेटिक मटेरियल जाएगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जब हमारे बॉडी के बाकी के सारे जो सेल्स हैं उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि एग और स्पर्म जो सेल बनता है, फीमेल में एग, मेल में स्पर्म, इनमें सिर्फ 23 पेयर्स की जगह पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं इन द गैमेट। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कंसिडर करेंगे, एंड देयरफॉर द गैमेट विल बी RY and small r, small y. So here there will be you are going to get F1 generation. F1 generation was the first filial generation, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है उसका मतलब कि जो सबसे पहले ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो F1 जनरेशन में हमें जो भी मिल रहे हैं वो सारे कैसे हैं? राउंड और येलो, क्योंकि मैंने पहले कहा था that only the dominant ones are going to express themselves. The recessive one will express themselves only when no dominant trait is present. Are you getting it? तो यहाँ पे R जो है that represents what? Round. Capital Y represents the yellow. Okay. Small r represents the wrinkled seeds and small y represents the green seeds. तो यहाँ पे एक्सप्रेस जो होने वाले हैं वो सिर्फ डोमिनेंट लेटर्स ही हैं। इसलिए F1 प्रोजेनी में जितने प्लांट्स मिले क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद, F1 में जितने प्लांट्स मिले वो सारे प्लांट्स कैसे थे? राउंड और येलो थे। Now he thought that if I have got round and yellow, what shall I get in F2 generation? So for this, he had made a self cross. What he had done? यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे self cross. सेल्फ क्रॉस मतलब जब सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है और फिर प्रोजेनीज को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसे सेल्फ क्रॉस कहते हैं। मतलब उसी की तरह के दूसरे, मतलब वो प्लांट के साथ उसे क्रॉस करवाया जाता है। इसे ब्रीडिंग कहा जाता है, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो इन दिस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हाउ कैन वी नो दैट हाउ मेनी प्रोजेनीज आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, राइट? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इनके, क्योंकि ये अब पेरेंट्स हैं, राइट? मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स हैं तो उनकी गैमेट्स तो
पहला गैमेट है कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट है कैपिटल आर विथ स्मॉल वाई, थर्ड इज स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई, and fourth one is small r small y. The same thing is going to be in the females also. इसीलिए फीमेल्स में भी ये चारों कैरेक्टर देखेंगे हम, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई and small r small y. So in this way we are going to get 16 possible offsprings. ओके 16 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी में हमें सिंपली यहाँ पे हम मेल फीमेल लिख देते हैं, राइट, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड को हम क्रॉस करते हैं, तो कैपिटल आर विद स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फोर्थ जो है वो इन दिस वे वी विल हैव टू कंप्लीट द होल पॉसिबिलिटीज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हियर Here we will be considering like this, capital R small r capital Y small y. Here we have got small r capital Y capital Y, small r capital Y small y. Over here you will get capital R small y small y, small r capital Y small y, and small r small y small. So what we have got over here, अगर आप अब हर एक को ऑब्जर्व करोगे तो पहला है कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका मतलब कि पहला पॉसिबिलिटी क्या है, राउंड सीड्स येलो इन कलर। दूसरा आप देखिए, दूसरे में भी राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, राउंड येलो। तीसरा हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी हमें मिला राउंड एंड येलो। ये भी हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये भी हमें मिलेगा राउंड एंड येलो। अगेन इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, सो दिस इज आल्सो राउंड एंड येलो। बट सी दिस वन, capital R but both the y is small. Now small y represents what? Green, right? Small y क्या represent कर रहा है, तो green represent कर रहा है, मतलब ये जो है वो कैसे होने वाले हैं, round but green. How they are going to be? Round but they are going to be green. Again this is going to be capital R and capital Y. So again you are going to get which type, round and येलो। यहाँ पे वापस राउंड और क्या मिल रहा है, ग्रीन। तो ये जो पिंक से सर्कल किया है वो क्या है, राउंड है पर ग्रीन है, ठीक है। तो पहला हमें जो पॉसिबिलिटी मिला वो क्या है, राउंड येलो। दूसरा पॉसिबिलिटी मिला वो क्या मिला अभी तक, राउंड और ग्रीन, ठीक है। चलो फिर ये आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेवेंथ वन। ये भी कैसा है, राउंड और येलो, दिस इज गोइंग टू बी द एट्थ वन। बट दिस वन स्मॉल आर विद द कैपिटल वाई। नाउ व्हाट डज स्मॉल आर रिप्रेजेंट, wrinkle, and capital Y yellow. So these are going to be wrinkled and yellow, wrinkled and yellow. We will be marking it with some other chalk, okay? तो ये कैसा मिल रहा है, wrinkled और येलो मिल रहा है। अब ये कैसा मिल रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी हमें मिला wrinkled और येलो, ठीक है।
दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो अगेन ये क्या हो गया, दिस इज राउंड एंड येलो. कैपिटल आर विद स्मॉल वाई, कैपिटल आर इज व्हाट, राउंड, बट स्मॉल वाई इज ग्रीन. तो हमें ये क्या मिला, राउंड और ग्रीन मिला. ठीक है, राउंड और ग्रीन के लिए हमने कौन सा सिंबल रखा है, सर्कल, राइट. फिर देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर मतलब रिंकल और कैपिटल वाई मतलब येलो. सो दिस इज गोइंग टू बी रिंकल एंड येलो. सो लेट अस मार्क लाइक दिस. एंड लास्ट वन यू गेट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. व्हाट इज स्मॉल आर रिप्रेजेंट, रिंकल, स्मॉल वाई ग्रीन. तो हमें चौथा कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, wrinkled and green. तो wrinkled और green कितने मिले हमें, wrinkled और green सिर्फ हमें मिला है एक ही. We have got only one possibility that is going to be wrinkled also and green also. अच्छा देख लेते हैं wrinkled और yellow कितने मिल रहे हैं. तो wrinkled और yellow कितने हैं, 3 हैं. So we get this as 3. राउंड और ग्रीन कितने हैं, राउंड और ग्रीन कितने हैं, 3. ठीक है, और बाकी के सारे कितने हैं, 9 पॉसिबिलिटीज हैं जो कैसी होने वाली है, ऑल आर गोइंग टू बी राउंड एंड येलो. दिस मेक्स द रेशियो 9, 3, 3, 1. दिस रेशियो यू आर गोइंग टू गेट. And such an experiment in which 2 characteristics are considered is known as a dihybrid cross. When 2 characters are considered at the same time, it is known as a dihybrid cross. So this was Mendel's second experiment using the 2 characteristics of the plant at the same time.